Piyush Gupta. So today I'll be talking about something that is called as Summary of Rich Dad Poor Dad. So I was actually reading this book. So I think this is the third or fourth time that I've read this book. But it is a brilliant book, and I would like to share my key takeaways. And here it goes. So Rich Dad Poor Dad is one of the finest books ever I have read, and that is not just a business and finance book. It is a book that explains the thought process of middle class into wealthy and some amazing takeaways that we all can learn from. For me, it is a must-read book in business or finance category. Now, after talking to so many people, I have realized that most people either have not read this book or the ones who have actually read this, they have forgotten most of it. So I feel it's a moral responsibility to share some incredible takeaways from this book. Now, those of you who don't know me, I'm a very successful IT engineer by profession with more than 16 years of IT experience. But I realized quite late that I'm not really passionate about my work even though I like coding. So a few years back, I started my own side hustle along with my job. And currently I'm a business and health coach, and I help people lose excess weight and make money from home along with their profession. So let's talk about this rich dad and poor dad. One of the most important distinctions between average people and wealthy people is their thoughts about money. Most poor and middle class people think that thinking about making money is not good and love of the money is the root of all evil. While wealthy people believe it's the lack of money that is actually causing all the problems or troubles. This learning was an eye-opener for me. Absolutely. I learned that different people have a different views about money, mainly because of the lack of financial knowledge, which we never get in our foundational years in school or either in college. Now, after reading this book thoroughly, I realized that the lack of financial education is not an excuse. If we don't know what we should do with our earned money, is actually a crime. Yes, crime. Unfortunately, I never got this guidance that we should have a thorough knowledge on finance. But since I do have this knowledge now, I must say that this is the book that we all should read. And that is Rich Dad and Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. You can either buy this book maybe on a hard paperback, or you can either buy it actually on a Kindle, which is a self-made multi-millionaire. The next statement I'm about to make can be considered very, very bold, but I strongly feel this book should be a part of our school and education curriculum. थोड़ा history and geography कम भी आएगी तो चलेगा, but financial education नहीं आई, we will be doomed for sure. For those of you who are wondering, what the heck is this Rich Dad and Poor Dad now? In this book, Robert Kiyosaki talks about learning from two different people he calls as Rich Dad and Poor Dad. He refers his own dad as his poor dad, as he saw his dad struggling his entire life with money and finances. While he also learned from his best friend's dad, who was actually a very successful, wealthy businessman, whom he referred to as his rich dad. I'll be sharing my key learnings from this book. First, the wealthy people, they don't trade their time to make money and make their money work for them. Means वो ऐसा कुछ करते हैं कि आज कुछ ऐसा हार्ड वर्क करें कि बाद में काम ना करना पड़े और हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो सके बिना हमारे काम करे भी. मीन्स पैसे से पैसा बना सके, ऐसा कुछ करना है. Robert shares in this book that most people बस भेड़चाल में लगे पड़े and they all follow this 20th century advice of studying hard, getting a good job, life is set. But most people in jobs think that this is the less risk route, but this is the most risky option according to me now. As हर दिन लाइफ में कॉम्प्रोमाइज, हर दिन लाइफ में एडजस्ट कुछ करना पड़ता है. एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी चादर हो उतने में पैर पसारना होता है. आई थिंक दैट्स अ वेरी पैथेटिक वे ऑफ लिविंग. आई लर्न दैट हम सबका करियर हम बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ही फायर्ड अप होकर स्टार्ट करते हैं एंड हैव दिस फीलिंग अब तो कुछ बड़ा करेंगे, कुछ एक्साइटिंग करेंगे, दुनिया जीत लेंगे. बट आफ्टर फ्यू इयर्स वो एक्साइटमेंट ना समहाउ काफी कम होती चली जाती है और बोर्डम में बदल जाती है वो एक्साइटमेंट, और हम बस सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं मंथ आफ्टर मंथ. जितना भी हम कमाते हैं मोस्टली हम उसको स्पेंड कर देते हैं. मोस्ट ऑफ अस ट्रेड अवर टाइम टू मेक द मनी. मीन्स समय दिया फिर पैसा आया, फिर समय दिया फिर पैसा आया, राइट. और ये काम हम कब तक करते हैं? फॉर द नेक्स्ट 40 years टू मेक द काइंड ऑफ इनकम दैट वी मेक. अगर कभी काम करना बंद कर दिया तो हमारी इनकम यानी बंद हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग द टाइम टू मेक मनी. सो आफ्टर फ्यू इयर्स वो एक्साइटमेंट फियर में बदल जाता है एंड वी ऑल स्टार्ट लिविंग वीकेंड टू वीकेंड. मीन्स हम मंडे मॉर्निंग हमारा बहुत ही डिप्रेसिंग डे होता है, जबकि फ्राइडे हमारा बहुत ही एक्साइटिंग डे होता है. किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? दिस हैपेंस फॉर 90% ऑफ द पीपल जो लोग एक जॉब करते हैं. ये लोग हर वीकेंड पार्टी करेंगे, मूवीज देखेंगे, ट्रैक पे भी जाएंगे. इन चीजों के लिए उनके पास टाइम भी होगा, पैसे भी होंगे. बट इन्हीं लोगों को अगर कोई बताए यू नो व्हाट, एक पेड कोर्स आ रहा है, उसमें अगर आप कुछ अच्छे से एनरोल कर लोगे, मे बी 500 रुपए का कोर्स है, आप अच्छी हेल्थ के बारे में कुछ सीख जाओगे, या आप अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज करना सीख जाओगे. तभी लोगों के पास ना तो टाइम होता है ना तो पैसे होते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होते हैं एट टाइम्स. मैं भी ऐसी था. बट वेल्दी पीपल, they don't follow this rat race. Wealthy mindset people, they are risk takers and they want to start their business at any cost. They understand that it might be a risk to start a business today, but सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा कि कुछ ना करना. अगर हम बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे, सबसे बड़ा रिस्क हो जाएगा फॉर 40 years later, और हम एक मीडियोकर और कड़के इंसान रहेंगे. कड़के को इंग्लिश में बहुत ही पुअर वर्ड है, इसको बोलते हैं ब्रोक. सेकंड,
Start building assets and stop buying liabilities. That is another very very important learning for me from this particular book. जितने भी wealthy mindset लोग होते हैं वो क्या करते हैं? They invest in assets. They believe that हमें मालिक बनना है और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और हमें नौकर नहीं बनना है लाइफ लॉन्ग किसी और के लिए, और मालिक खुद का बनने के लिए हमें खुद का बिजनेस रन करना ही पड़ेगा. They invest a major portion of their income either in their self education, investments and whatever money remains उसको वो लाइफस्टाइल में बाद में स्पेंड करते हैं. जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? वो सबसे पहले लायबिलिटी से पैसा खर्च कर देते हैं, उसका पैसा कुछ बचता ही नहीं उनके पास. सो अगर हमारा माइंडसेट क्या होता है एज अ पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल, सब लोग आईफोन ले रहे हैं तो चलो हम भी ले रहे हैं, सब लोग वीकेंड पे वेकेशंस पे जा रहे हैं हमें भी जाना है, सब लोग एक्सपेंसिव कार बाय कर रहे हैं हमें भी कार बाय करनी है. 3-4 लाख रुपए की कार लूंगा तो स्टूपिड लगूंगा यार, बहुत इंसल्टिंग लगेगा. सब लोग तो 10-12 लाख की कार ले रहे हैं, हमें भी वैसे ही लेना चाहिए. भेड़ चाल में लगे पड़े हैं. एक मिडिल क्लास इंसान अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने से डरता है. उसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैक्स, वो सोचता है कि खुद का घर होएगा तो मेरी एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी. उसको लगता है कि ये जो मेरा घर है वो एक एसेट है. अनफॉर्चुनेटली इसको ये पता नहीं होता है जिस घर में वो रह रहा है वो घर एक्चुअली एक इनकम जनरेट करने में उसको हेल्प नहीं कर रहा है. राइट, हम बस उस घर को एक एसेट मान लेते हैं. वो मोस्टली सोचता है कि आज अगर सपोज मैंने 50 लाख रुपए का घर ले लिया है, मे बी 15-20 साल के बाद या एटलीस्ट 3 या 4 गुना उसकी प्राइस बढ़ जाएगा. बस उसको बस इतना ही लगता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ. Unfortunately, I too was a part of this middle class mindset, जहाँ पे मेरा एस्पिरेशन सब यही थे, पैसे को बस वेस्ट ही करना है और इन्वेस्ट और मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचता ही नहीं था. If you are actually getting value from this video, I would highly suggest make sure to subscribe to my YouTube channel अगर आप YouTube पे हैं. अगर आप मेरे को Facebook और Instagram पे सुन रहे हैं, do follow me and like me and share this video for sure. Third point, that is another very very important takeaway from me from this particular book, and that is have financial education, which is a must. In fact, मेरे हिसाब से financial knowledge जो होती है that is highly critical. Few years back मैंने एक सुशील कुमार के बारे में सुना था who won 5 crore rupees in कौन बनेगा करोड़पति. But now I was reading in some newspaper that he has actually gone broke. Means वो bankrupt हो गया, उसके सारे पैसे उसने डुबो दिए. The answer is simple. It's not about how much money we make. It's about what we do with what we make. Are we just spending it all or are we wise with our money and our spendings? And the best way to check our money mindset कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, जिसको मनी माइंडसेट भी बोलते हैं. उसका सिंपल टेस्ट क्या है? आप अपने बैंक अकाउंट को देख लीजिए. आपके बैंक में जितने पैसे हैं या आपके जितने भी टोटल एसेट्स हैं उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका मनी माइंडसेट कैसा है. So it is very simple to see how much assets we own, which is an instant way to see how good we are with our finances. Last month मैंने 2 paid courses buy किए थे. One on personal money management and second one was how to be a multi-millionaire. And I must say, एक वीकेंड मॉल में ना जाके और पार्टी ना करना और उस पैसे को सेव और इन्वेस्ट करना, एक पेड कोर्स में बाय करना जिससे मेरे को फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल एजुकेशन मिल सकती है, दैट इज फार बेटर इन्वेस्टमेंट. ये मेरे को आज तक किसी ने सिखाया नहीं था. थैंक गॉड आई हैव दिस नॉलेज नाउ. आई लर्न कि मैं अपने जितने भी मेरे जो मंथली एक्सपेंसेस हैं या तो मैं उनको पेपर पे लिखूं या एक एक्सेल में लिखूं और अपने आप को पूछूं इनमें से मेरे कितने एक्सपेंसेस जो हैं वो मैंडेटरी एक्सपेंस हैं और कितने नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं, और आउट ऑफ माई टोटल एक्सपेंसेस क्या मैं आउट ऑफ माई टोटल इनकम क्या मैं अपनी इंटायर इनकम का मैं क्या 10% सेव कर सकता हूँ क्या, और अपनी इंटायर लाइफ जो भी मेरे टोटल एक्सपेंस है मैं उसको 90% इनकम में somehow उसको मैनेज करता हूँ. I was shocked to find that most of my expenses were totally useless liabilities, like एक iPhone buy करना और एक laptop buy करना जिसकी मेरे को जरूरत नहीं थी. A very important quote I would like to share is that money without financial knowledge is as good as not having money only. Let me repeat it. Money without financial knowledge is as good as not having money only. Stop believing. Fourth point I would like to share जो मैंने इस बुक से सीखा, and that is stop believing in either an or mentality and start believing in I want it all. Let me explain. Most average people think या तो मैं हेल्दी रह सकता हूँ या तो मैं पैसे बना सकता हूँ. उनको लगता है या तो मैं फैमिली टाइम एंजॉय कर सकता हूँ या तो मैं अच्छे पैसे बना सकता हूँ. बट दैट्स अ वेरी वेरी एवरेज, इनफैक्ट आई वुड से पुअर मेंटालिटी थिंकिंग. सक्सेसफुल और वेल्थी लोग जो हैं वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं? दे वांट एवरीथिंग. वो उनका माइंडसेट क्या होता है? मेरे को सब कुछ चाहिए. आई वांट गुड हेल्थ. वो बिलीव करते हैं मेरे को एंजॉयमेंट भी चाहिए. दे वांट गुड फैमिली रिलेशंस, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ नॉलेज, पीस ऑफ माइंड, एंड वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे. दे रीड सम गुड बुक्स ऑन देयर नॉट टू लर्न अ लॉट. दे वांट टू हैव क्वालिटी इन देयर ऑल द एरियाज ऑफ देयर लाइफ. सपोज अगर मैं आपको पूछूं कि आपका आर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका लेग, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे क्या स्टूपिड क्वेश्चन है यार, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. राइट. सिमिलरली मोस्ट एवरेज पीपल उनका ऐसी माइंडसेट होता है या तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है या तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है. मेरे हिसाब से सब कुछ इंपॉर्टेंट है और हमें सब चीज़ों पे काम करना चाहिए. एंड लास्टली फिफ्थ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स के लिए काम करना. स्टॉप वेस्टिंग टाइम वर्किंग फॉर अदर पीपल्स ड्रीम्स एंड गोल्स एंड सेटल फॉर पीनट्स. इन शॉर्ट,
यू नीड टू बिकम अ बिग ड्रीमर और खुद के लिए काम करना सीखना है। खुद के बिजनेस में 50,000 रुपए कमाना किसी और के नौकरी में 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाने से कहीं बेटर है। रॉबर्ट सेज दैट मोस्ट पीपल सुबह एक अलार्म क्लॉक के साथ उठते हैं और मॉर्निंग में उस जगह जाते हैं जहां वो लोग जाना चाहते नहीं है, और ऐसे लोग ऐसे बॉस के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम करते हैं जिनकी उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एडजस्ट करना सीख लिया। उनको ये एडजस्टमेंट वर्ड बहुत ही कंफर्टेबल हो गया, मींस हमने डिस्कम्फर्ट में भी कंफर्ट ढूंढ लिया। इंस्टेड रॉबर्ट क्या सिखाते हैं? हमें एक बिजनेस ओनर बनना है और एक इन्वेस्टर बनना है। He talks about this amazing ESBI quadrant, जहाँ पे इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो क्या बोलते हैं? या तो हम 90% कैटेगरी में हैं एज एन एम्प्लॉय और ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, या तो हम 10% कैटेगरी में हैं जहाँ पे हम एज अ बिजनेस ओनर और एक इन्वेस्टर है। इंटरेस्टिंगली 90% लोगों के पास 10% पैसा है और इन 10% लोगों के पास 90% पैसा है। आई वाज लाइक वाओ। ही सेज कि जॉब करो लेकिन पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए जॉब करो। एक किराए का मकान तब तक अच्छा होता है जब तक आपका खुद का मकान ना हो जाए। Today I feel I deserve to make at least 3 to 4 crore rupees a year and travel all around the world, and I should be buying anything without looking at the price tag. कोई भी अच्छी चीज आती है, क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है? क्यों सेल का वेट करना है? इमीडिएटली बाय करना है। इतने पैसे होने चाहिए। उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाउ डिड आई गेट दिस बिलीफ? दे से नो, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप करके लोगों की संगत में रहोगे आप वैसे बन जाएंगे। थैंक गॉड मैंने से करके लोगों की संगत थोड़ा सा दूर कर दी। कुछ लोगों ने मेरे को बुरा बोला कि पीयूष अब तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करता है। सी आई रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल, आई वांट टू बी वेल्दी। मेरे को अपने सारे ड्रीम्स और एम्बिशंस पूरे करने, और वो तभी पॉसिबल होएगा जब मैं अच्छे सक्सेसफुल, मुझसे 10 टाइम्स ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहूं। Thank God, I started associating with a lot of smart business owners who were ready to help me. Because of their step-by-step guidance, now I'm expanding all over the country, and eventually I'll scale my business to even 100+ countries where we are operating. Hopefully this video has added some value. I would suggest start with baby steps. Even if you can take out at least even if one point, अगर आपको इस entire video में से सिर्फ एक point भी मिलता है जिसको आप implement कर सकते हो, सुन के कुछ नहीं होगा, implement करना पड़ेगा. And that with just implementing it is far better than just liking this video and just forgetting about it. Please share it with others if you feel it has added some value, and stay tuned for more content. Have a good day. Take care. Bye bye.